In COVID times, it's not just physical health. What is even more important is your mental health. हम अगर यहाँ से सही हैं, अगर हमारा मन ठीक है, तो हम अपने आप ही हेल्दी रहेंगे. हमें इजीली कोई बीमारी नहीं पकड़ सकती. Our immune systems are strong. Hi Preeti, welcome to Expert Tribe. Hi Deepshika, how are you? Good. How have you been? I've been fine. It has been a bit stressful in the last few months, but we are doing fine. I hope you are also doing fine. Yes, we are all coping up. Thank you for inviting me today. My pleasure. प्रीति, मैं आपके साथ ना पहले क्वेश्चन ये पूछना चाहूंगी कि आपकी जर्नी कैसी रही है. आप एकदम स्टार्ट से हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करो. तो मैं थोड़ा और स्टार्ट से जाऊंगी, थोड़ा और पीछे से जाऊंगी, because there are multiple facets to my life today. So basically, my father was in a job which took him to a lot of places in India and outside India also. तो उससे हमारी स्टडीज भी कुछ अलग ही तरह की हो जाती हैं, हमारा एक्सपोजर भी अलग अलग कल्चर्स का. सो लाइक आई कैन टॉक मराठी, गुजराती, smattering of a lot of even foreign languages, which is something which really helps you in the long run. And it also exposes you to, it makes you, it sensitizes you to various cultural differences. That is a part. So I am basically a homeopathic doctor, and I have almost 22 years of clinical experience now. I've been doing practice. So ये background मैंने इसलिए दिया कि होम्योपैथिक डॉक्टर के साथ साथ आई एम ऑल्सो अ ब्लॉगर. आई लाइक टू राइट अबाउट थिंग्स. ऑफ लेट फूड ब्लॉगिंग और मेंटल हेल्थ पर आई हैव बीन ब्लॉगिंग. सो फूड ब्लॉगिंग का जो इंटरेस्ट है ना, वो बचपन से ही डेवलप हुआ. क्योंकि जब हम बॉम्बे में रहे तो वहां पर हमने बॉम्बे का खाना ज्यादा खाया, वड़ा पाव, ये सब का टेस्ट डेवलप हो गया. जब हम गुजरात में रहे तो हमें दाबेली का टेस्ट डेवलप हो गया. एंड एक एप्रिसिएशन भी आ जाता है कि यू स्टार्ट लविंग. तो जब हम दिल्ली में आके सेटल हुए फाइनली, तो वो इंटरेस्ट बना रहा कि एक्सप्लोर करो. अब तो शायद हर हाउस होल्ड में एवरीबडी नोज के वड़ा पाव क्या होता है. उन दिनों में बड़ी बात होती थी कि दिल्ली में कोई इडली डोसा सांभर बना के खा सकता है. तो अब हमारी वही आदत और वही फितरत हो गई कि हम नई नई चीजें एक्सप्लोर करना चाहते हैं, नई नई चीजें. So basically, in my food blogging, I explore restaurants or places which are serving different kinds of food, and I review them. I also try to focus on lifestyle, healthy lifestyle. I try to motivate people to develop healthy habits. I try to educate people. Of late, COVID के बारे में मैंने बहुत लिखा है. So that's my journey. I started blogging after I had my second child. I'm married. I have 2 kids. तो डॉक्टरी तो साथ साथ चली रही थी. ये ब्लॉगिंग का शौक और ब्लॉगिंग का टाइम तब निकाला जब छोटा बेटा हुआ. उसके बाद आई थॉट कि क्या करें, थोड़ा फ्री टाइम है, थोड़ा ऑफिस से छुट्टियां चल रही हैं, तो क्या करें, ब्लॉगिंग शुरू की. दैट इज हाउ एवरीथिंग स्टार्टेड वर्किंग, एंड हियर आई एम टुडे. राइट. जैसे आपने अभी बोला कि आपकी होम्योपैथी काफी सालों से चल रही थी और अभी हम कोविड सिचुएशन में हैं. तो हाउ हैज होम्योपैथी हेल्प पीपल ड्यूरिंग दिस फेज? कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा है? That is a really very good question you have put forward. And I really want to take this opportunity to tell people that homeopathy has really, really worked wonders. I'll not say it's a magic remedy, nothing of the sort, but we have found a few homeopathic remedies which I've shared with my patients and the general public on my social media platforms also. When they were taking those medicines regularly, it acted like a vaccine. So they hardly got the disease, or they got a very mild kind of a COVID infection. I can safely and proudly say that out of the 95% people who took homeopathic medicine, I say 95% because 5% का मुझे भी नहीं मालूम. कई लोग आउट ऑफ दिल्ली चले गए तो मुझे नहीं मालूम. लेकिन जो लोग मेरे पास लौट के आए और मैंने उनसे पूछा हाउ आर यू ड्यूरिंग द एपिडेमिक, मोस्ट ऑफ देम 95%
did not need hospitalization, did not have severe disease. Most of them were fine throughout the epidemic. So I really, it is really, मेरी faith बहुत strong हो गई. मतलब ये क्योंकि एक नई disease है. Even we didn't know how well it will work on people, but we are really happy that we could save many lives. बहुत सारे लोगों के मेरे पास फोन आते थे जब लॉकडाउन हो गया दिल्ली, कि डॉक्टर हमारा पेशेंट आईसीयू में है, ऑक्सीजन 70% चला गया, 75%, कैन यू गिव सम होम्योपैथिक मेडिसिन जो हम साइड बाय साइड चला सके. एंड बिलीव यू मी, इट रियली वर्कड. I was able to save 5 people whose oxygen level was around 70 despite being on ventilator. Oh. And they came out of it. So I think some credit definitely goes to homeopathy. कि वो वापस अपनी families के पास safe and sound within 1 week आ गए. So yes, homeopathy has worked and I'm sure it will keep on working like that. तो ये एक एज ओल्ड हमारे कंट्री की ब्लेसिंग है होम्योपैथी, एंड डेफिनेटली वो नए डिजीजेस के साथ भी काम आ रही है. इट्स ग्रेट टू हियर दैट. Actually, homeopathy is something which was started in Germany. Okay. So it is not actually an Indian pathy. It's a German pathy. लेकिन इंडिया ने उसको 19th century मतलब अर्ली 1900 समथिंग से भी पहले 1800 समथिंग में अडॉप्ट कर लिया था. महाराजा रणजीत सिंह फ्रॉम पंजाब वाज वन ऑफ द इनिशियल पेशेंट्स ऑफ होम्योपैथी. इतनी पुरानी होम्योपैथी इंडिया में है और इतना प्यार दिया गया है होम्योपैथी को कि हम लोग ये समझते हैं कि होम्योपैथी शायद इंडिया में ही शुरू हुई है. इट इज अ ग्रेट थिंग बिकॉज पूरी वर्ल्ड में होम्योपैथी के सबसे ज्यादा पेशेंट्स और प्रैक्टिशनर्स इंडिया में. More than Germany, more than France, more than America, Indian people are practicing homeopathy and are taking homeopathy as a treatment. हाँ, तो जैसे आपने एक और मेरे को आई एम वेरी क्यूरियस कि आपने बात की कि कोविड के टाइम आप हेल्थ ब्लॉगिंग कर रहे हैं और आप तो फूड ब्लॉगिंग से आपने हेल्थ ब्लॉगिंग पे अपने आप को अडेप्ट किया. तो हमारे व्यूअर्स के लिए आपके पास क्या वो रहेगा कोविड टाइम्स में होम्योपैथी प्लस हेल्थ ब्लॉगिंग से आपका क्या मैसेज है, यू नो व्हाट कैन दे डू? हेल्थ ब्लॉगिंग ना तो 2 वजह से ज्यादा मैंने फोकस शुरू किया. इनिशियली इट वाज फॉर फन. जो हमारा ब्लॉगिंग था, फूड ब्लॉगिंग वाज मोर ऑफ फन, खाने पीने के बारे में बातें करें. अब लॉकडाउन में क्या हुआ, खाना पीना तो सब बंद हो गया बाहर का, तो हम क्या करेंगे. तो और हम बीमार नहीं पड़ना चाहते, तो हम लोग कुछ हेल्थी फूड्स पे या द सेम फूड विद अ ट्विस्ट पर हमने कॉन्सेंट्रेट किया. तो मेरा जो इंस्टाग्राम है उस पर आप देखोगे मोस्टली सैलड, सूप्स, या घर में ही कैसे हम वो सब चीजें बनाएं जो हम पहले बाहर खा लेते थे, या उसको हम क्या ट्विस्ट दें. चीला है तो उसको मिला के बना लो, उसमें कुछ हेल्दी मिलेट्स मिला लो. इस तरह के ऑप्शंस हमने प्रमोट किए. वी वर प्रोमोटिंग गुड हेल्दी फूड. और हेल्थ जो मैंने अपने ब्लॉग पर शुरू किया, इट वाज in COVID times, it's not just physical health. What is even more important is your mental health. हम अगर यहाँ से सही हैं, अगर हमारा मन ठीक है, तो हम अपने आप ही हेल्दी रहेंगे. हमें इजीली कोई बीमारी नहीं पकड़ सकती. Our immune systems are strong. We fight off any infection very much more easily if we are mentally healthy. So the focus was on promoting how to improve your mental health. Exercise regularly, do yoga, deep breathing, have a good sleep, exercise at home if you can't go out, and all those general things which sometimes nobody tells us that they are important, that I was trying to promote on my blog. right. जैसे कि आपने एक अपने लिए ब्रांड बिल्ड किया है, आपके 50,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम से. तो what does it take, you know, to build a brand on internet these days? That's again a very important question. A lot of newbies also ask me, ma'am, how have you reached that level? So one is, if you start early, gradually, of course, people keep on adding. Secondly, and I think the most important thing is, how unique are you? So like in Delhi, there are thousands of bloggers, thousands of Instagrammers. What makes you stand apart? That is very important. In my case, see, as I said, I don't do simple street food. I try to do things which will have more protein, which is something. Or if you want to have street food, how to take a healthy version. Have idli, sambar. Or if you want to have samosa, snack it, but chutney thoda avoid karo, because they carry infectious germs. So there's a little health twist. Health ka thoda sa twist hai. So my version.
आपका वही है कि खाना तो आप रोज सेम सबके घर में खा रहे हो, किसका तड़का अच्छा। सो दिस इज व्हाट मेक्स यू स्टैंड आउट। राइट, आपके सभी लोग रोटी सब्जी खाते हैं, आपको एक ही जगह का क्यों अच्छा लग रहा है? सेम वेज फॉर अ डॉक्टर, एवरी डॉक्टर कैन ट्रीट यू, बट एवरी डॉक्टर हैज हिज ओन नुएंसेस, उनका खुद का एक रैपो होता है। So whether your audience, and who is your audience, who are you addressing? Now my audience knows I'm a doctor and I'm a blogger. I'm somebody who respects all cultures. I'll not say fast food is bad. I'll not say only North Indian food is good. So एक्सेप्ट आपका ऑडियंस को आप समझो, और जितना आपका वाइड ऑडियंस होता है उतना ज्यादा आपका बेस बढ़ते जाता है। So it goes on. जैसे कि आपने एक स्टार्टिंग में बात बोली कि आपके बहुत सारे फैसेट्स हैं, तो होम्योपैथ डॉक्टर का आपका एक फैसेट है, फूड ब्लॉगर का एक फैसेट है, देन यू आर होम मेकर एज वेल। तो हाउ डू यू मैनेज सो मेनी फैसेट्स? I don't know how I manage. लेकिन one is of course prioritize. My first priority will always be medicine. मेरा medicinal career of course is always first. So but I do try to take time out like Sundays, weekends, जहाँ पे मैं कुछ समय blogging को दे सकूँ. I do think about and plan what topic I need to write about. Home तो खैर 24 hours 24/7 job है, with young kids, of course, that is there. Other than that, there are other passions. I also love to run. So अभी तो lockdown में बंद है, but I make sure even when I'm indoors, I try to complete my 5 kilometers inside my home every day. And I've run half marathons. Two half marathons I've completed. I'm actually missing all the action. So that is another passion. तो जनरली देखा जाता है कि लोग शादी के बाद या बच्चे होने के बाद वो अपने पैशंस कहीं पीछे छोड़ देते हैं, बट इट्स ग्रेट टू सी दैट यू आर स्टिल परस्यूइंग देम। I think that is what makes you relevant. That's what I mean. You have to. There is no age for. There's no age for pursuing your passions. Right. This is something I'll tell everyone. If you want to run, like I was always a very active kid, but I started doing marathons after I turned 40, which people say 40 is not the age for running. That you'll damage your ligaments, your knees, and all that. But कोई एज नहीं है, किसी को आपको रोकने मत दो। आपको जो करना है, आपको ये पैशन के साथ कभी भी करो। 60 में करना है 60 में करो, 10 साल की उम्र में करना है 10 साल की उम्र में करो। फुल पैशन के साथ जहां करोगे, जो करोगे, सक्सेसफुल ही होगा। Blogging was something which was very new at that time. I started blogging around 2014. उस टाइम बहुत ज्यादा ब्लॉगर्स नहीं थे, एंड मुझे भी कोई एक्सपोजर नहीं था, बट बस बनते गए, रास्ते खुलते गए। जब आप शुरू करते हो तो आप सीखते चले जाते हो। So I'll say that it's a fine balance, but if you have a passion for everything, you can definitely work 2 or 3, 4 things. You can definitely balance. राइट। एक और बात है कि हमारे इंडियन हाउस होल्ड्स में बहुत सारी विमेन हैं जिनके पास बहुत सारे टैलेंट्स होते हैं, जो कि अभी तक बाहर नहीं आ पाते, बट इंटरनेट के एडवेंट से इट हैज बिकम वेरी इजी। आपका इस पे क्या ओपिनियन है? व्हाट शुड दीज विमेन डू? हाँ, आप देखोगे कि इंस्टाग्राम पे जो लोग पहले कुछ नहीं था, अब आप इंस्टाग्राम खोलो, आपको रील्स में डांसेस दिखेंगे, कुकिंग दिखेंगे। लोग बोर हो गए, लोगों ने नई नई चीजें शुरू करी, लोगों ने कम्युनिकेट किया कि यही एक हम लोगों के पास यही एक मीडियम रह गया था। लॉकडाउन में यही एक मीडियम रह गया था, इंटरनेट, जिससे हम एक दूसरे के साथ बातें कर पा रहे थे, अपनी चीजें शेयर कर पा रहे थे। तो आई विल से टू एवरीवन, स्पेशली उन सब लेडीज को जो सोचते हैं कि हम होम मेकर्स हैं। No woman is just a homemaker. I say a homemaker is actually an administrator. वो इतने सारे चीजों को एडमिनिस्ट्रेट कर रहा है ना, वो इतने सारे डिपार्टमेंट्स लेके चल रहा है कि वो फाइनेंस भी लेके चल रहा है, वो हेल्थ का डिपार्टमेंट पोर्टफोलियो भी उसके पास है, और ब्यूटी का भी उसके पास है कि यू हैव टू लुक स्मार्ट, फिटनेस। सो जब वो इतने सारे चीजें हैंडल कर रहे हैं ना, तो वो एक होम मेकर नहीं है, शी इज ऑलरेडी अ सुपर वुमन। तो फिर आप अपने पैशन के लिए डेफिनेटली टाइम निकालिए। इंटरनेट बहुत सस्ता हो गया है, ऑल यू नीड इज अ गुड स्मार्टफोन। जस्ट हैव अ स्मार्टफोन, हैव एन इंटरनेट कनेक्शन, आइडेंटिफाई कि आपका पैशन क्या है, आप किसमें बहुत अच्छा कर रहे हो। कुकिंग है, डांसिंग है, स्टिचिंग है, कुछ नहीं करना, बस आप वीडियोस डालो और रेगुलरली डालो।
ये नहीं कि साल में एक बार, रेगुलर करते रहो तो पीपल विल स्टार्ट नोटिसिंग यू and brands will start noticing you. You will become your own brand. That is definitely going to happen. All you need to do is follow your heart, follow your passion, and be sincere in your efforts. Right. Any other opportunities for the women at home आप share करना चाहते हो? How should they make it out? कैसे they can make it big? There's no short way to making it big. That is one thing I have realized. Yeah. There is no such shortcut. But yes, if you have talent, WhatsApp groups are one way to start. I was in a family function. Mm-hmm. So somebody was telling, she's a housewife. She was telling us कि मैं किटी पार्टी में 50 लोगों का खाना बनाती हूँ, and she has a passion for making new dishes. Mm-hmm. And I suggested, why don't you start a catering business? Mm-hmm. When you are cooking for 50 people, why don't you do it every day and start sending tiffins, having your own home restaurant? Mm-hmm. Because that is one beginning. Mm-hmm. So whatever it is, if you embroider well, आप बहुत अच्छी सिलाई करते हैं, आप बहुत अच्छी एम्ब्रॉयडरी करती हैं, तो आप अपने टैलेंट को इंटरनेट पे ले जाइए. आजकल अमेज़न वगैरह बहुत सारे ऑप्शंस हैं जहाँ पे आप ब्रांड को फीचर कर सकते हो और लोग पे करते हैं उसके लिए. Mm-hmm. तो आई विल से दैट यू डेफिनेटली अपने टैलेंट को, अपने जो भी आपके अंदर हुनर है उसको शोकेस कीजिए और आप जरूर यू कैन मेक इट बिग. यू कैन बी अ सक्सेस स्टोरी. तो आपसे मेरा आखिरी क्वेश्चन रहेगा प्रीति कि व्हाट वुड योर मैसेज बी टू अ यंग मॉम कि वो कैसे सब कुछ मैनेज करे आपकी तरह 20 some years down the line, वो अपने आप को एक मल्टीफैसेटेड देख पाए, वो अपने भी पैशन जी पाए और अपना घर भी अच्छे से मैनेज कर पाए. So what would your message be? Here I will speak as a doctor and as a mom both. Yes. I always tell my patients also कि सबसे पहले जब आप एक यंग मॉम हो, आपकी पहली जिम्मेदारी अपना ख्याल रखिए, अपनी हेल्थ का रखिए. मैंने बहुत सारी यंग मॉम्स देखी हैं जो फैमिली और उसमें काम के प्रेशर में ऐसी परेशान हो जाती है कि उनकी खुद की हेल्थ ही डिक्लाइन हो जाती है. तो सबसे पहले आप अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, टाइम पे खाइए, टाइम पे न्यूट्रिशियस डाइट लीजिए. व्हेन यू आर वेल तो आपकी सारी चीजें सही होती हैं. First 6 months should be entirely about you and your baby. First 6 months after the birth should be entirely about you and your baby. After that, baby का dependence आप पे कम हो जाएगा. Then you can start focusing on your work. Generally, फिर आप साइड में देखोगे कि आप 1 घंटा, 15 मिनट, 2 घंटा जो भी आप निकालना. Don't pressurize yourself. क्योंकि आपने जो मदरहुड ली है, 9 months आपने वो चीज ली है ना, तो आप उसको 2-3 महीने के लिए उसको आप ऐसे अपने आप को प्रेशराइज मत कीजिए कि आई हैव टू गेट बैक टू माय वर्क और आई हैव टू स्टार्ट समथिंग न्यू. वो प्रेशर लेने की जरूरत नहीं. अगेन मेंटल हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट. पोस्टपार्टम हार्मोन्स आपके वर्क कर रहे होंगे, उस वक्त आप डिप्रेशन में चले जाओगे, एंजाइटी में चले जाओगे. वो सब करने की कोई जरूरत नहीं. 6 महीना खुद को और बच्चे को पूरा टाइम दीजिए. उसके बाद आपको जितना टाइम मिलता है उसमें अपना देखिए कि मुझे चलिए 1 घंटा मिल रहा है या 2 घंटा मिल रहा है, अब मेरे क्या पैशन. देन यू स्टार्ट डूइंग इट, डू इट एंड शोकेस इट. आज अपलोड करने में क्या 5 मिनट लगता है, कोई भी चीज, बड़े से बड़ा वीडियो भी आप 5 मिनट में डाल सकते हो. एंड सो दिस इज व्हाट आई विल से शुड बी योर प्लान. एंड वंस यू स्टिक टू इट, उसके बाद आपके पास समय हो जाए. एज योर किड्स ग्रो यू विल गेट मोर टाइम, you will be more focused, and also you will get more experience because you have been starting for a long time. So by the time आप डॉक्टर प्रीति चौहान की तरह इस उम्र में आएंगे, आप ऑलरेडी आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे अपने फील्ड में. राइट. आई थिंक इससे बेटर आप समराइज नहीं कर सकते थे जो आपने मैसेज दिया है. थैंक यू सो मच. थैंक यू फॉर बीइंग ऑन द शो. You are thank you so much for inviting me. Yes. Stay safe, stay happy. Yes. Bye. Thank you so much. Wow, प्रीति मैम की जर्नी तो बहुत इंस्पायरिंग है. Being a homemaker, then she is a homeopathic doctor, and वो अपना पैशन भी फॉलो कर रही है, and being successful at everything. That is pretty amazing, right? So हम सब का भी ना कोई पैशन ज़रूर होता है, बट या तो हम कोई रीजंस की वजह से उसे स्टार्ट ही नहीं कर पाते, या फिर अगर हम स्टार्ट कर भी दे तो ड्यू टू लैक ऑफ गाइडेंस या फिर सम प्रॉब्लम्स हम कहीं ना फेल हो जाते हैं. तो अगर आपका भी ऐसा कोई पैशन है या इंटरेस्ट है जिसे आप या तो स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर आप उसमें कोई प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, तो हमें कमेंट्स में बताइए वो सब चीज़ें. क्या आपका पैशन है, आप उसे कैसे स्टार्ट करना चाहते हैं, या फिर आप क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, एंड हम मिल के ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, इस पर डिस्कशन करेंगे
एंड आपके पैशन को एक अच्छे लेवल पे ले जाने की कोशिश करेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और हमारे बाकी सारे वीडियोस भी देखिए, बिकॉज वी आर एक्सपर्ट ट्राइब हेल्पिंग यू चेंज योर स्टोरी, चेंज योर लाइफ।